अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मैथ की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहे होंगे एज वी हैव completed our chapter number 5. Moving towards today from chapter number 6 we are going to start, that is basic statistic. तो चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको भी आज हम कवर कर लेते हैं. होप सो चैप्टर नंबर 5 तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और प्रैक्टिस अच्छी हो रही होगी. Moving towards chapter number 6, here we have first definition, that is frequency distribution. So frequency distribution बच्चों हमारे पास क्या होता है? It is a tabular arrangement for classifying data into different groups and the number of observation falling in each group corresponding to the respective group. It is called the frequency distribution. The data presented in the form of frequency distribution, it is called the group data. जो हम group form में present करें data को frequency distribution में, that is called the data which is presented in the form of frequency distribution. It is called the group data. Construction of a frequency table, we have there are two types of frequency distribution. Number one, discrete frequency distribution. Second one is continuous frequency distribution. अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. व्हाट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल? द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट वन है हमारे पास जी मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन लेंगे, राइट करेंगे वैल्यूज़ को इन वेरिएबल कॉलम फ्रॉम मिनिमम टू द maximum. We will record the observation by using the tally marks, that is known as the vertical bar जिसे हम कहते हैं. We will count the tally and write the frequency in the frequency column. उसके बाद आ जाता है हमारे पास continuous frequency table जिसमें हम range से maximum to minimum value find करेंगे, that is called the range. H stand for size of class interval, that is denoted by H by using a formula H is equal to range divided by K हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है. उसके बाद हमारे पास टर्म आ जाती हैं. द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन अ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ क्लास लिमिट. व्हाट इज क्लास लिमिट? दैट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज डिफाइंड फॉर अ क्लास और अ ग्रुप. इट इज कॉल्ड द क्लास लिमिट कहलाती है हमारे पास. मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट एंड द मैक्सिमम वैल्यू इट इज कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट. ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लास बाउंड्रीज. कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल विच इन्वॉल्व द रूल ऑफ अप्रॉक्सीमेशन. क्लास बाउंड्री क्या होता है बेटे? जो हमारे पास 0.5 लेस और 0.5 ग्रेटर वैल्यूज होती हैं रिगार्डिंग क्लास लिमिट, दैट इज कॉल्ड द क्लास बाउंड्रीज. ठीक है, ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री कहलाती है और ये हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री होती है. उसके बाद नेक्स्ट टर्म है मिड पॉइंट और क्लास मार्क. मिड पॉइंट क्या है? दैट इज द एवरेज ऑफ दैट क्लास obtained by dividing the sum of upper and lower class limit by 2. It is called the midpoint and the another name for midpoint is a class mark. उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट हमारे पास cumulative frequency, the total of frequency up to an upper class limit or boundary. It is called the cumulative frequency. Cumulative frequency क्या होता है? sum up of the frequencies मीन्स जिसमें हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को अपर क्लास लिमिट को एड अप करते रहते हैं, वो हमारे पास CM दैट इज cumulative frequency कहलाती है. Next we have a histogram, that is the construction of histogram. We can construct the graph as well. So histogram is a group of adjacent rectangles constructed by on XY plane. It is called the histogram. It is basically the graph of frequency distribution. ठीक है, इसके बाद जब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे तो आपको फर्दर सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी. ठीक है, we have another definition, that is the frequency polygon. What is frequency polygon? As you know that polygon is a many-sided closed figure. It is called the frequency polygon. Its construction is explained by the following example. जब हम इसीलिए मैंने कहा कि जब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे तो हम तभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Here the next term is cumulative frequency distribution, जिसमें हम अपर क्लास बाउंड्री को ऐड करते हैं. दैट इज कॉल्ड द frequency distribution. It is also called a less than cumulative frequency distribution भी हमारे पास कहलाता है. ठीक है, moving towards exercise number 6.1, we have the following data shows the number of members in a various family. Construct the frequency distribution, also find the cumulative frequency. ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास बेसिक स्टैटिस्टिक. जैसे कि मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ we have minimum value, मैंने डाटा को अरेंज कर लिया. the minimum value is 2 and the maximum value is 12 from the given data. After that they are saying that you have to find the cumulative frequency and construct the frequency distribution. अब उसके लिए हमें क्या चाहिए? डाटा, number of members, tally bar, frequency and the cumulative frequency we are going to calculate it. Okay,
So number of members 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. The maximum values I have written in a sequence form. अब हमने देखा कि 2 how many times it comes in a given data. तो 2 repeat हुआ just only one time, 3 times, 4 जो है वो हमारे पास 6 time आया, 5 जो है 4 times, 6 3 time, 7 6 time, 8 5 times. इसी तरह हमने remaining up to 12 maximum value तक write down कर लिया. ठीक है. अब बात आती है cumulative frequency. First one as it is we will write it. Second one is a 3. So 1 plus 3 equal to 4. 4 plus 6 equal to 10. 10 plus 4 equal to 14. 14 plus 3 17 and so on. That's we have calculated our cumulative frequency. It is represented by CF. अब आ जाती है tally bar. Tally bar कैसे write करते हैं? On the basis of frequency we will write the tally bar. 1 है तो 1, 3 है तो 3 lines put कर देंगे. हाँ अगर बिलो मोर देन 5 है, 6 वैल्यू है तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 लाइन्स लगा के 6 को हमने कट कर देना है. ठीक, इसी तरह 1 2 3 4 है हमारे पास, 3 है 1 2 3 6 1 2 3 4 5 को हमने कट कर दिया और 6 लाइन आ गई. इसी तरह 5 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन वी हैव राइट. दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके, होप्स आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा. क्वेश्चन नंबर 1. Same we have question number 2. The following data has been obtained after weighing 40 students of class 5. Make a frequency distribution taking class interval size as 5. Also find the class boundaries and the midpoints भी हमने find करने. So look here, I have solved question number 2 as well because बहुत difficult है at that time. It take a lot of time to draw this as well, but if you have a perfect practice then it takes just only 3 to 4 minutes to solve this question. We have class interval 20 to 24 हमने ले लिया इसमें class interval. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमें गिवन है ऑल्सो मेक अ लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मेक क्लास इंटरवल. उन्होंने हमें हिंट दे दिया 20 से 24 25 से 29 एंड सो ऑन बना है. तो हमने देखा हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी 44. 20 से 24 तक हाउ मेनी वैल्यूज लाइज दैट आर 6. क्लास बाउंड्री बनाई. अब 20 से हमने कहा था 0.5 लेस और 0.5 ग्रेटर जो होता है वो क्लास इंटरवल का हमारे पास क्या कहलाता है, दैट इज क्लास बाउंड्रीज. आफ्टर दैट वी हैव कैलकुलेटेड द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, क्लास इंटरवल को सम अप करो डिवाइडेड बाय 2 करो, दैट इज कॉल्ड द मिड पॉइंट. नेक्स्ट यहाँ स्पेस कम थी तो नेक्स्ट हमारे पास कम्युलेटिव क्लास बाउंड्रीज है, फ्रीक्वेंसी एंड क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक, अब ये टेबल किसका है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का. उन्होंने कहा था लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी टेबल आपने ड्रॉ करना है. अब हमने उसको ड्रॉ कर लिया फर्स्ट एज इट इज़. देन क्या होता है, एडअप करते जाते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. वी हैव टेकन अ मिड पॉइंट और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है. सो हाउ मेनी वैल्यूज आर ओवर देयर, हमारे पास है जी कितना 24 पे 24.5 पे वी हैव 6 फ्रीक्वेंसी. सो ऑन इसी तरह इस टेबल को देखते हुए हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट कर लिया. ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 2 सेम हमने इसी तरह इसी फार्मूलाज पे इसी मेथड को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है. आई एम नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो सेम हमारे पास वेट गिवन और फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने बनाना है. तो अब इसमें देखें ये वेट था, फ्रीक्वेंसी है, मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्री. ठीक, हमने इनको एज इट इज टेबल हमारे पास गिवन था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको हमने फ्रीक्वेंसी का नेम दिया, मिड पॉइंट वी हैव कैलकुलेटेड. मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय एडिंग these values 20 plus 24 divided by 2. Here the answer is 22. So class boundary is 0.5 less और 0.5 greater होता है हमारे पास. इसी को देखते हुए मैंने कहा था कि आपने फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज के दरमियान आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेना है. अब कैसे, 19.5 से 24.5 तक क्या हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ 5. तो यहाँ तक मैंने 5 कर लिया. इसी तरह 24.5 से 29.5 वी हैव अ फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 8. तो हमने इसी तरह देखते हुए सारी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ कर लेना है. होप सो ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे. नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द मेन इंपॉर्टेंट जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं, एक्चुअली जो डेफिनेशन स्टार्ट हो रही हैं और जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो फ्रॉम 6.2 टू 6.3 ऑनवर्ड हमारे पास होंगे. 6.1 भी मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए इट्स ओके, बट your main focus will be on exercise 6.2 and 6.3 for board preparation. Okay,
तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम 6.2 को कोशिश करेंगे कि कवर कर लें. दैट इज़ अ लेंथी एक्सरसाइज एज वेल. देयर आर 13 क्वेश्चंस आर ओवर देयर एंड मोर डेफिनेशंस आर ओवर हेयर. सो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह ताला. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स.